A very good evening to everyone. Am I audible? Welcome to Agriculture Current Affair class. Am I audible? And can you please confirm is screen is visible to everyone? Please confirm this first. I think there is some issue with the screen. Is it visible to everyone? Please confirm this first. Is screen visible to everyone? Clearly? Just give me a second. I will try to just wait. Okay. Chalo. So let's start our today's session in which we are going to discuss the current affair of March, that is from year 20 to 30, 20 to 28th of March, sorry, not 30. So let's start with the first one. Like there is a reverse migration in agriculture is visible in recent years. Okay, and these data was given by Abhi recently. There were no data, there were no survey in this agriculture migration, but if we analyze जो अभी शालिनी दे विल रिलीज इट सून. ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई अभी, जल्दी रिलीज करेंगे. सो first focus on our class, after that you can ask me these things. So let's start. Reverse migration in agriculture is visible. Reverse migration means कि लोग जो है labor force जो है they are migrating from other places or they are migrating from urban areas and now they are engaged in agriculture. How we can say this? So periodic labor force survey which was conducted by National Statistic Office, it under your Ministry of Statistics and Program Implementation. MOSPI के अंदर जो आपका National Statistic Office है, they regularly conduct this PLS. And last year, why this is important? Because in 2023 mains, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. यहाँ से क्वेश्चन था, तो लास्ट ईयर जो है आपका रूरल लेबर पे क्वेश्चन था. दिस ईयर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल. सो लुक हियर इन 2020-21 द पीपल हु आर एंगेज, द परसेंट ऑफ लेबर फोर्स विच आर एंगेज इन योर एग्रीकल्चर इज 46.5. ठीक है, इतने लोग थे. आफ्टर दैट इन 2021 एंड 22 ओनली 45.5 मीन्स डिक्रीज. यहां पे क्या हुआ था? डिक्रीज हुई है लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी. बट अगेन इन द ईयर 22 एंड 23, क्योंकि कोविड के बाद के ईयर्स थे, ओके, पीपल शिफ्टेड फ्रॉम urban to rural area and they started engaging in agriculture sector. So in 22-23 this value again increased to 45.8% and still it is increasing. So ये क्या कह रहा है कि reverse migration हो रहा है agriculture में. The next look here, as per the NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey, जो NAFIS survey है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि who conduct this NAFIS survey. तो it is conducted by NABARD. This survey says that the percentage of agriculture household, ठीक है, कितने लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं बाय ईयर योर 2016, दैट इज योर 48%, है ना. 2016 में कितने लोग एंगेज थे? 48%, विच वॉज इंक्रीज इन 2021 टू 56.7%. अभी करेंटली इतने हैं. अब आपसे यहां से जो है फेज 1 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेज 2 में भी क्वेश्चन. फेज 1 में अगर पूछ रहे हैं तो दे कैन आस्क यू डाटा ऑन इट, ओके, एंड इन डिस्क्रिप्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर दे कैन गिव यू एंड पैसेज ऑन माइग्रेशन और लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं. तो ये फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए ही रेलेवेंट है ये डाटा. ठीक है, नेक्स्ट, जैसे फेज 2 में लास्ट ईयर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन द इंक्रीज एंड डिक्रीज बेसिस. देयर वर फ्यू स्टेटमेंट्स वर गिवन टू यू कि लेबर फोर्स इज एंगेज मोर इन दिस, है ना. अर्बन लेबर ज्यादा है, रूरल लेबर कम है, वुमेन लेबर. तो इंक्रीज डिक्रीज पे 4 ऑप्शन है, तो वहां से क्वेश्चन था. तो उसी तरीके के क्वेश्चन इससे भी आपके बन सकते हैं एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ.
This was under your Atma scheme, which is under your training, in which the training is provided to the rural youth so that unemployment in rural area can be tamed. Okay, agriculture sector में they want कि जो rural यूथ है उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ट्रेन कराएं, उनको न्यूअर टेक्नोलॉजी सिखाएं. तो ये जो है that comes under your STRY scheme, that is your skill training of rural youth. और ये कौन प्रोवाइड कराता है, कौन से स्कीम के अंडर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. ठीक है, ये इसके अंदर आपका ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर. ये ट्रेनिंग है, दिस ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग. दिस इज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग विच इज हैविंग अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 7 days. कितने दिन का है इसका ट्रेनिंग पीरियड? 7 days का. ओके, एंड दिस स्कीम वाज अंडर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. अभी इसको इसके अंडर है. एंड अंडर दिस not just on rural youth, your women, SC, ST, all are trained for latest agriculture technologies. Okay. Next question. Look at this is a soil health card scheme. Soil answer me in the comment section when the soil health card scheme was launched. You have to be engaged in my class. ठीक है, आंसर करोगे तभी पता लगेगा कि आप रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एंड किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है. सो यू हैव टू आंसर इट कि व्हेन दिस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च. तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम रिसेंटली अ स्टडी वाज कंडक्टेड. जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी तो आवर सॉइल वाज डिग्रेडेड अ लॉट. हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. इन सम रीजन इट इज़ सेलाइन, किसी एरिया के अंदर एसिडिक थी, बेसिक सॉइल थी. ओके, एंड इन सम रीजन देयर इज़ अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. लाइक आर इंडियन सॉइल इज जनरली डेफिसिट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. ठीक है, तो टू reduce that degradation of a soil with the excess application of nitrogenous fertilizer, this scheme was launched that we will give you an free checkup. जैसे free checkup गवर्नमेंट देती है ना, हेल्थ चेकअप, वैसे ही एक फ्री चेकअप किसके लिए दिया गया था? एग्रीकल्चर फील्ड के सॉइल के लिए, कि आप हमारे पास लेके आओ हर सीजन में, रबी एंड खरीफ में, अपनी सॉइल को, एंड वी विल एनालाइज कि हाउ मच न्यूट्रिएंट आर देयर इन दैट एंड वी रिकमेंड यू. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि किस चीज़ की कमी है किसकी नहीं है, और फिर वो उसी के बेसिस पे हमें मेडिसिन देता है कि यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यू कैन टेक विटामिन डी. तो उसी बेसिस पर आपके न्यूट्रिएंट को फार्मर्स को बताया गया था कि आपकी सॉइल इसमें डेफिसिट है, इसमें नहीं है, तो यू कैन डू दैट. अब ये देयर वाज अ सर्वे कि व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन और अचीवमेंट्स, कि इससे सॉइल हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है और फार्मर्स ने केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ को कितना कम किया है या कितना ज़्यादा किया है. दिस वाज द study here, and this study was conducted by National Institute of Agriculture Extension Management, which was in Hyderabad. ये आपके जो institutes है ना, generally in your agriculture exam like your AFO, they can ask you the हेडक्वार्टर और द प्लेस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. तो जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन न्यूज में है अभी, आपको उनके हेडक्वार्टर्स या उनके प्लेस को याद करना है कि वो कहाँ पर है. तो किसने स्टडी कंडक्ट की थी? दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट विच वाज सिचुएटेड इन हैदराबाद. दे हैड एनालाइज्ड दैट देर इज अ रिडक्शन इन फर्टिलाइजर यूज. जो फर्टिलाइजर यूज है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज जो है वो कम हुआ है. एंड इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट it started. Integrated fertilizer management क्या है? It is a type of fertilizer application in which I use all the available resources to in my field. ठीक है, कि मेरे पास बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर अवेलेबल है, जैसे मेरे पास बायो फर्टिलाइजर, आई विल यूज दैट. मेरे पास केमिकल फर्टिलाइजर भी अवेलेबल है, आई विल यूज दैट. आई एम हैविंग कंपोस्ट, आई एम हैविंग फार्म यार्ड मैन्योर, तो आई विल यूज दैट. मीन्स जितने भी रिसोर्सेज फर्टिलाइजर के अवेलेबल है, इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर आई विल यूज इन माई फील्ड. दैट इज कॉल्ड एज योर इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट. ओके, सो इन्होंने पाया कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज जो है वो कम हुआ है, और नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन का यूज एंड बायो फर्टिलाइजर
and micronutrient fertilizer uses has increased in recent years. So what are the finding? They found out that paddy farmers reduce urea by 9%. उन्होंने यूरिया को 9% कम कर दिया है यूज करना. लाइक पैडी एंड व्हीट में सबसे ज्यादा आपका यूज होता था क्या? यूरिया. नेक्स्ट डाई अमोनियम फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये जो है आपका कितना परसेंटेज कम हुआ है? 7% कम हुआ है. अब आप मोस्टली एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे या फिर आप नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे. ये क्वेश्चन आई विल आस्क यू लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन, जस्ट आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. सिंगल सुपर फॉस्फेट ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है या लो एनालिसिस फर्टिलाइजर? बताइए. एंड यस ओम, योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज 2015. ओके, सो ये फर्टिलाइजर डीएपी एंड यूरिया usage has decreased over the year and the use of potassium is increased by 20%. ओके, जो पोटेशियम फर्टिलाइजर इनका यूज इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट, अब सॉइल हेल्थ कार्ड जो है क्या मेजर करते हैं? जनरली द सॉइल हेल्थ कार्ड मेजर 12 पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल. 12 पैरामीटर्स ये मेजर करते हैं सॉइल का, जिसमें आपका एनपीके आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट आई विल से. ठीक है. एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? दीज आर द न्यूट्रिएंट विच रिक्वायर्ड इन मोर देन 500 mg, ठीक है, पर केजी इन फील्ड. ठीक है, जो 500 mg से ज्यादा रिक्वायर्ड है फील्ड में, दे कम्स अंडर योर मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज एनपीके. एंड दिस सल्फर इज योर सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट. ओके, आफ्टर दैट जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड बोरोन, दीज आर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट. सो ये तो आपके 17 में से इतने न्यूट्रिएंट को टेस्ट करते हैं. आउट ऑफ 17 हाउ मेनी न्यूट्रिएंट आर टेस्टेड? एनपीके, सल्फर, ठीक है, एनपीके, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड बोरोन. सो दीज आर काउंटेड. नाउ दे ऑल्सो एसेस सम फिजिकल पैरामीटर एज वेल. कुछ फिजिकल पैरामीटर भी वो एसेस करते हैं, और वो फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से? आपके पीएच को काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कार्बन की कितना है. वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काउंटेड? क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज इट टेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स इन द फील्ड, कि कितने ज्यादा सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है फील्ड में. बिकॉज सोडियम अगर ज्यादा है तो इट विल फ्लॉक्यूलेट द सॉइल, वो सॉइल के स्ट्रक्चर को ही खराब कर देता है. एंड इट मेक सॉइल नॉट एट ऑल, इट मेक सॉइल लाइक degrade the complete structure of the soil and that soil will become non cultivable. ठीक है, उस पर फिर हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते. ठीक है, that's why electrical conductivity was counted. हाँ, yes Om, your answer is correct. Single super phosphate is low analysis fertilizer. It is required, it is having less than 25% of primary nutrient. ठीक है. So based on these SSGs, the soil health card was issued to the farmer. अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था हाई एनालिसिस एंड लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, तो देखो दो तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. हाई एनालिसिस एंड लो एनालिसिस फर्टिलाइजर. हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं विच कंटेन्स मोर देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, एंड लो एनालिसिस फर्टिलाइजर विच आर हैविंग लेस देन योर 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट. सो सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितना होता है आपका? 16% न्यूट्रिएंट होते हैं. ओके, एंड इन योर यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज होती है? बताइए. नेक्स्ट देखते हैं. इफ यू विल रेगुलरली फॉलो दीज क्लासेस ना, योर स्टैटिक अलॉन्ग विद योर करंट अफेयर ऑफ एग्रीकल्चर दोनों ही कवर हो जाएंगे. तो डोंट ट्राई टू मिस दिस क्लासेस. इनको रेगुलरली, इफ यू कांट अटेंड लाइव तो लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देखिए इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, सो लुक एट नाउ नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन. ये एक अर्लियर स्कीम है, बट टू इंट्रोड्यूस दिस आई हैव टेकन दिस बिकॉज ये रिसेंटली अभी एक रिप्लाई फाइल किया गया था अभी लोकसभा में, उससे रिलेटेड है. सो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दिस स्कीम वाज लॉन्च टू प्रमोट द साइंटिफिक बी कीपिंग. ठीक है, साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, एंड फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग सेक्टर टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब बीज क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल
योर एपीकल्चर, है ना, हनी प्रोडक्शन हो जाएगा तो फार्मर को एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल इनकम फार्मर की हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग योर बी कीपिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉर क्रॉप के लिए, पॉलिनेशन के लिए आपकी बीज जरूरी है ना, नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं बीज, तो बीज आर एसेंशियल. तो दे वांट टू प्रमोट द साइंटिफिक बी कीपिंग, जो आप, ठीक है, ताकि जिसकी वजह से आपका अदर एनवायरमेंट को, अदर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कम हो. नाउ दिस NHB स्कीम हैज 3 सबमिशन, इसमें 3 सबमिशंस है. वन इज मिशन 1, 2 एंड 3. नाउ मिनी मिशन 1, अंडर दिस मिनी मिशन 1 के अंदर क्या टारगेट रखा है, दे वांट टू, देयर आर प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, है ना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है क्रॉप्स की वाया यूजिंग पॉलिनेटिंग टेक्निक्स बाय साइंटिफिक बी कीपिंग, कि पॉलिनेटर्स को इतने अच्छे तरीके से यूज करना है दैट वी कैन एंश्योर अ गुड पॉलिनेशन ऑफ आवर क्रॉप. अब पॉलिनेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, है ना, सारे के सारे फ्लावर्स अगर मेरे पॉलिनेट हो जाए तो प्रोडक्शन अच्छा होगा. नेक्स्ट मिनी मिशन 2, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग इन सपोर्टेड. मिनी मिशन 2 में क्या करेंगे ये लोग, दे विल डू द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कि अच्छे से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो, मीन्स कि बी कीप कर ली हमने, पॉलिनेशन हो गया, नाउ द डेथ ऑफ द बीज आर देयर एंड वी हैव कलेक्टेड द हनी. तो अब उस हनी को स्टोर कैसे करना है, प्योरीफाई कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, वैल्यू चेन कैसे सप्लाई, तो दैट विल. एंड देन मिनी मिशन 3, अंडर दिस दे वांट टू प्रमोट द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन बी कीपिंग सेक्टर. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क. ओके, नेक्स्ट लुक है, दिस वाज इन जनरल. ये आपका लाइक यू कैन यूज दिस करंट अफेयर इफ यू हैव टू राइट एन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर. अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तब आप इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ से डाटा, बहुत कुछ इसमें रटने की जरूरत नहीं है. देखने में बहुत लग रहा है कि भाई बहुत डाटा है, नो दैट इज नॉट देयर. लुक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, इट हैज रिसीव्ड अवार्ड फॉर, इट हैज रिसीव्ड द एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर. व्हाई इट हैज रिसीव्ड, बिकॉज इट दे दिस तमिलनाडु वाटर डिपार्टमेंट ना हैव रिजुवेनेटेड ग्राउंड वाटर. ठीक है, इन्होंने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया है एंड दे हैड इम्प्रूव्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेरियस water bodies. Okay, and irrigation facilities in low irrigated area is also extended. So that's why they have received this award. And ये जो project था, ये किसने help की थी, which organization has supported this project? तो this project was funded by World Bank. जो तमिलनाडु वाटर एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम था for rejuvenation of water bodies, this program was funded by your World Bank and this has won the Excellence in Integrated Water Resources Management Award. Okay, and the name of the project was Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि which award was won by this or the Excellence in Integrated Water Resource Management by Central Board of Irrigation and Power was given to विच प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट को दिया था एंड दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक. अब इन्होंने किया क्या, क्या अचीवमेंट्स थी इस प्रोग्राम. सो लुक हियर, दे हैड, यू कैन यूज दिस डाटा इफ यू आर राइटिंग सम आंसर ऑन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग पे, ये आप कुछ आंसर लिख रहे हैं, देन यू कैन यूज द रेफरेंस ऑफ दिस तमिलनाडु कि उन्होंने क्या किया था. So infrastructure rehabilitation of approximately 2600 tanks, check dams, और look here 5000 किलोमीटर एरिया में सप्लाई चैनल्स ओपन किए हैं सो दैट वाटर कैन रीच टू नॉन वाटर और नॉन इरिगेटेड एरिया एज वेल. आफ्टर दैट दे हैड मेड 94 आर्टिफिशियल रिचार्ज वेल्स. एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया है. जिस रीजन में एग्रीकल्चर नहीं था वहां पे 1,17,290 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड को एक्सटेंड किया गया है, वहां तक एग्रीकल्चर को पहुंचाया. ओके, एंड दिस प्रोग्राम वाज कोलैबोरेटेड बाय स्टेट universities and other 7 departments of government. Okay, next
government withdraws the 20% export subsidy from the onion. Last year जब September or December, I forgot. Okay, last year at the end of the 2024, when onion प्राइस राइजेस, जब अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो गए, दे हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई, देन द गवर्नमेंट पुट 20% एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन द अनियन. ठीक है, अनियन को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 20% एक्सपोर्ट सब्सिडी लगेगी, सो दैट एक्सपोर्ट जो है वो अनियन का रुक जाए एंड द इंडियन पॉपुलेशन विल हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ अनियन, और प्राइस ताकि थोड़े से कम हो जाए अनियन के, इसलिए एक्सपोर्ट सब्सिडी लगाई थी. सो बट now this season, this time May and April is the harvesting time of onion. अब ये harvesting time है अनियन का. अब अनियन का harvesting time होगा तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो फार्मर विल बी एट द लॉस, फार्मर को वो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव दिस 20% सब्सिडी फ्रॉम द अनियन एक्सपोर्ट. ओके, सो अब कुछ डाटा देखते हैं इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ, एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल. सो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, सब्सिडी लगाने के बाद भी वी हैव एक्सपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 17.17 लाख मेट्रिक टन ऑफ onion in 2023 and 24. In the current fiscal year up to March, अभी रिसेंटली मार्च 2025 तक अगर मैं बात करूं तो वी हैव एक्सपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 11.65 lakh metric ton of onion, which was increased from 0.7 LMT to 1.85. इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एंड रेशनल फॉर विड्रॉल, सबसे पहले क्यों विड्रॉ किया है इस चीज को, कि जो मंडी के अंदर लोकल प्राइसेस है दे आर डिक्लाइंड बाय 39%. मंडी के प्राइस जो है 39% गिर चुके हैं, कि अगर 1 kg प्याज 50 रुपए की तो इस पर 39% डिक्रीज कर लो, उतना आपका प्राइस गिर गए. आफ्टर दैट रिटेल प्राइस, जो रिटेल मार्केट में प्राइस है, दे आर डिक्रीज बाय 10%. जब इतने ज्यादा प्राइस गिर गए हैं और फार्मर की अब हार्वेस्टिंग सीजन है तो अनियन बल्क में आएगा तो फार्मर्स को लॉस होगा इफ दिस मच लेस प्राइस विल बी देयर. ओके, नेक्स्ट लुक नाउ प्रोडक्शन एस्टिमेट, कितना हमारा प्रोडक्शन हो सकता है इस बार. तो दिस इज द रबी सीजन. अभी जो हार्वेस्टिंग होगी वो कौन सी अनियन की हार्वेस्टिंग होगी, रबी सीजन की. सो हियर total estimate of the rabi onion production is 227 lakh metric ton, which was 18% more than the last year. Last year कितना था, 192 lakh metric ton. This was expected 227 lakh metric ton. That is your 80% higher than last year. And one more thing is there, जो इंडिया में अनियन प्रोडक्शन है, रबी प्रोडक्शन ऑफ अनियन इज अराउंड 70 to 75% ऑफ द टोटल अनियन प्रोडक्शन. मतलब अनियन कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी क्रॉप है, और सबसे ज्यादा रबी सीजन में ही ग्रो होती है. ओके, ये क्वेश्चन ना कई बार आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं. आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पल्स. नाबार्ड में ही पूछा था पल्स से रिलेटेड कि खरीफ पल्स रबी पल्स हैव मोर प्रोडक्शन देन खरीफ क्रॉप. ठीक है, तो रबी ऑब्वियसली, सो दे हैव आस्क्ड कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. सो यस, दैट स्टेटमेंट वाज Rabi products, that statement was correct. So here they can also ask you कि onion production during Rabi season is more than Kharif season. तो yes, ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इंटरफेरेंस करके पढ़ना पड़ेगा. लुक है, अब जो अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे कवर किया था, तो इन इकोनॉमिक सर्वे आई हैव टोल्ड यू दैट फ्लोरिकल्चर वाज डिक्लेयर्ड एज अ सनराइजिंग सेक्टर इन एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा बिकॉज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड में भी मैं बात करूं तो जो प्रोसेस्ड और फूड है, द फ्लोरिकल्चर सेक्टर हैज ओवरटेक्ड इट्स एक्सपोर्ट. ठीक है, उसके एक्सपोर्ट को ओवरटेक कर लिया. सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट था किसका हुआ है लास्ट ईयर, आपका फ्लोरिकल्चर सेक्टर. दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एपीडीए हैव फैसिलिटेटेड दिस. तो फर्स्ट एवर एंथूरियम प्रोडक्शन, एंथूरियम फ्लावर वाज एक्सपोर्टेड टू सिंगापुर. तो कौन से फ्लावर को मिजोरम से एक्सपोर्ट किया गया है, एंथूरियम को. फर्स्ट टाइम दिस वाज द एंथूरियम फ्लावर. एंड एंथूरियम फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. इसको घर पे रखने से बोलते हैं ना, इट्स एन एयर प्योरीफायर प्लांट.
ठीक है, तो इट्स प्योरीफाई द एयर एंड द मेजर प्रोडक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंथूरियम फ्लावर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, सो दैट इज इन योर मिजोरम। कौन सा स्टेट है जो एंथूरियम फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, दैट इज योर मिजोरम। ओके, एंड इंडियन फ्लोरिकल्चर सेक्टर हैज रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट हिट ग्रोथ ऑफ $86.26 मिलियन 2023-24 में। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है किसका, फ्लावर्स को। और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट में, दैट इज ऑफ योर नॉर्थ ईस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वहीं से हुआ। ओके, एंथूरियम किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो होता है, मिजोरम में। कहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया है, मिजोरम से सिंगापुर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया है, APEDA। ओके, हो गए सारे क्वेश्चन कवर यहां से, भूलना नहीं है अब। एंड विच सेक्टर इज अ सनराइजिंग सेक्टर इन एग्रीकल्चर नाउअडेज, दैट इज योर फ्लोरिकल्चर। चल एक और चीज देखते हैं। नाउ सिक्किम इज हैविंग अ नेचुरल चिल्ली देयर, दैट इज कॉल्ड एज योर दल्ले खुरासानी चिल्ली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दल्ले खुरासानी चिल्ली। दैट इज द स्पाइसीएस्ट एवर, बहुत तीखी होती है ये चिल्ली। ठीक है, इवन एक चिल्ली जो है ये हमारी नॉर्मल 10 चिल्लीज के बराबर है। तो दैट इज दल्ले खुरासानी चिल्ली, फर्स्ट एवर, एंड दिस इज एन GI टैग्ड ऑफ सिक्किम एज वेल। ठीक है, किसका है ये GI टैग, सिक्किम में। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस chilli was first time exported from Sikkim to Solomon Island, again facilitated by your APEDA। ठीक है, एंड फार्मर से 15,000 kg ऑफ फ्रेश चिल्ली वॉज एक्सपोर्टेड। ठीक है, फार्मर को कितना प्राइस मिला है इसका, अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 रुपए पर kg, दैट इज बूस्टिंग द फार्मर्स इनकम एंड फंडेड बाय योर this। and dalle khurasani chilli is GI product of Sikkim। next look, center approves the direct procurement of chana, mustard and lentil at the MSP। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि आप चना मस्टर्ड एंड लेंटिल MSP पे डायरेक्टली फार्मर से परचेज कर सकते हैं। सो लुक हियर, अब कितना परचेज कर सकते हैं, MSP पे तो पहले भी परचेज हो रहा था, बट दे आर नॉट बाउंड नहीं थे कि करना ही है। तो दे हैड डायरेक्टेड दैट टू प्रोक्योर 2.8 मिलियन टन ऑफ चना, दैट इज योर ग्राम। ठीक है, 2.82 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड एंड 0.94 मिलियन टन ऑफ लेंटिल्स। अब सबसे ज्यादा इस डिसीजन का फायदा किसको होगा, द डिसीजन विल बेनिफिट द फार्मर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, बिकॉज सबसे ज्यादा इन क्रॉप का प्रोडक्शन इन ही रीजन्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर दिस government have promised to buy 100% of tur, urad and masoor if their price fall below MSP for the next 4 years। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तूर, उड़द एंड मसूर इनके प्राइस MSP से कम गिर जाते हैं इन द मार्केट, अगर कोई आपसे MSP से कम प्राइस पे ये क्रॉप्स खरीद रहा है, देन गवर्नमेंट विल बाय 100% ऑफ दीज क्रॉप्स फ्रॉम यू फॉर द नेक्स्ट 4 years, दैट इज योर 2028 to 29। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट हियर, द सेंटर हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द परचेज ऑफ, सेंटर ने तूर दाल के परचेज को, जो अरहर है उसके परचेज को अप्रूव किया है, दैट परचेज दैट तूर दाल एट MSP पे ही खरीदना, उससे कम नहीं, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी फॉर द दिस खरीफ सीजन, जो खरीफ सीजन अभी आएगा उसमें। एंड दे हैड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ तूर परचेज इन कर्नाटका फ्रॉम 30 to 90 days फॉर द ईयर 2025। अब इसमें कुछ और इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स भी हैं इसमें। लुक है, गवर्नमेंट सेड कि वी आर कमिटेड, फार्मर्स ने अब ये MSP पे क्यों कर रहे हैं, पल्सेस के लिए एंड ऑयल सीड के लिए। लुक हेयर, फर्स्ट if you have seen the economic survey, then we have registered a very less growth, like 0.19% growth in your oilseed production and lentil production, even after lot of government initiative। ठीक है, क्यों, अब इनका प्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी है, दालों का प्रोडक्शन भी जरूरी है, बिकॉज इट विल रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ आवर सॉइल, और एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट, वी आर एट द लोअर साइड on oilseed production, we are the largest country to
इम्पोर्ट ऑयल, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हमारी कंट्री में ऑयल्स का, एडिबल ऑयल का हो रहा है। तो वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू बी सस्टेनेबल, वी हैव टू इंक्रीज आर प्रोडक्शन इन ऑयल सीड, अदरवाइज हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम तूर दाल हुआ, आपका ऑयल सीड हुआ, इनको एमएसपी पे डायरेक्टली फार्मर से परचेज करेंगे। अब फार्मर क्यों इनको ग्रो नहीं करते थे? बिकॉज एमएसपी वॉज लेस एंड देयर वर नो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट टू द गवर्नमेंट, दैट्स वाई दे विल नॉट ग्रो देयर, है ना, उनको ग्रो ही नहीं करते थे। सो दैट्स वाई दिस डिसीजन वॉज टेकन कि फार्मर से हम परचेज करेंगे, एंड टू फार्मर को अवेयर करने के लिए कि यू शुड ग्रो दैट, यू शुड नॉट फियर कि हु विल बाय योर प्रोड्यूस, वी विल बाय योर प्रोड्यूस, यू शुड ग्रो देयर। Okay, so what are the other initiative? Government says कि we are 100% committed to procure तूर from the farmers via nodal agencies। और कौन सी nodal agencies हैं जो pulses को procure करती हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने 2-3 बारी बताया है, जिस दिन एमएसपी का स्ट्रक्चर समझाया था, आई हैव टोल्ड दैट डे एज वेल। आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दे हैड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ पीएम आशा टिल 25 to 26, रिसेंटली अभी किया है, लास्ट में पढ़ाया था। एंड द टोटल अप्रूव्ड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अप्रूव की है फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन। और ये जो आपका रबी मार्केटिंग सीजन है, दिस वाज अ पीवाईक्यू ऑफ योर नाबार्ड में अभी पूछा था ये आपका, कि रबी मार्केटिंग सीजन किस टाइम का, टाइम पीरियड क्या है? दैट इज योर मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में जो आपकी प्रोक्योरमेंट होती है ना, अभी हार्वेस्टिंग होगी, है ना, क्रॉप्स की, मार्च में अभी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, सॉरी अप्रैल में। सो हार्वेस्टिंग विल बी देयर, देन दे हैव टू सेल दैट। तो दिस रबी मार्केटिंग सीजन इज अप्रैल में। सो इन दिस total approved quantity for this rabi marketing season is your 27.99 lakh metric ton of mustard and 28.28 lakh metric ton of your pulses, and this will be procured from Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat। यहाँ से ये परचेज किया जाएगा। टोटल अप्रूव्ड क्वांटिटी ऑफ लेंटिल, लेंटिल कितनी प्रोक्योर की जाएगी? 9.40 lakh metric ton, and government have also told कि we will procure copra milling or boll from the Tamil Nadu as well। ठीक है, बताइए, आपने आंसर नहीं दिया मुझे। Who will be the central nodal agency to procure the pulses from the farmers? एक छोटा सा न्यूज है कि जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, दैट वाज लॉन्च्ड इन योर 2013 में जब लॉन्च किया था। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर स्कीम्स इन दिस एज वेल कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, वी विल इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द फूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पुअर पीपल अंडर द प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, है ना, हम ये सब पुअर पीपल को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो देयर वर लॉट ऑफ इनिशिएटिव अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। हाँ, येस ओम, दैट इज योर नेफेड एंड एनसीसीएफ। तो लुक हियर, अब ये जो स्कीम है इसका रिसेंटली नाम बदल दिया गया है, एंड द नेम वाज चेंज फ्रॉम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन। मतलब बीच में एक और न्यूट्रिशन वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड हु इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी? कौन है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? योर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, एंड अंडर दिस स्कीम, एक छोटी सी लाइन और बता देती हूँ आप लोगों को कि अंडर दिस स्कीम दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ योर पल्सेस, न्यूट्रीसीरियल, राइस एंड व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड बजट में भी बहुत सारे इंटरवेंशंस थे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सो ऑन मार्च 1925 रिसेंटली अभी क्या डिसीजन लिया है कैबिनेट ने? दे हैड इंक्रीज द बजट ऑफ एंड दे हैड रिवाइज्ड योर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम को भी रिसेंटली रीप्रोग्राम किया है, एंड दे हैड इंक्रीज द बजट टू 1000 करोड़। तो टोटल आउटले कितना हो गया इसका? 2790 करोड़ फॉर दिस टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2021 में टिल योर 2025, बट दे हैड इंक्रीज द बजट ऑफ इट टू
1000 करोड़, इतना बजट इसका इंक्रीज कर दिया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इस स्कीम में अदर कंपोनेंट क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट कि वी विल इंप्रूव द डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब है, बिल्कुल कोई स्टोरेज हाउसेज नहीं है, वेयर हाउस नहीं है स्टोरेज के लिए, बेटर आपकी क्या कहते हैं सप्लाई चेन नहीं है, तो वी विल इंप्रूव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज दे वांट टू डेवलप डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव्स के साथ डेयरी स्ट्रक्चर, डेयरीज को बढ़ाना है विद द ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इस एजेंसी के साथ मिल करके। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? दिस विल क्रिएट 1000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कितनी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट हो जाएंगी इससे? 1000। ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं गवर्नमेंट। एंड दे हैव सेट द टारगेट कि वी विल क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख एम्प्लॉयमेंट एंड विल बेनिफिट 70% ऑफ वुमेन। ठीक है, just give me a second. Next scheme is the Union Cabinet has approved the revised guideline for Rashtriya Gokul Mission to boost livestock sector. राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या था? इट वांट टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड वांट टू रिस्टोर द इंडिजिनस बोवाइन स्पीसीज। ठीक है, जो इंडिजिनस बोवाइन स्पीसीज है उनको आपको प्रमोट करना है ना, उनको कंजर्व करना है, बिकॉज ड्यू टू द व्हाट आई कैन से एक्सोटिक ब्रीड्स, जो उनकी प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था। बिकॉज फॉर दैट द गवर्नमेंट हैव लॉन्च दिस स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दैट वी वांट टू प्रमोट एंड वी वांट टू कंजर्व द इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड। सो अगेन दिस अंडर दिस स्कीम दे हैव इंक्रीज द आउटले, और कितना इंक्रीज किया है? अगेन 1000 करोड़ रुपीज बढ़ा दिए, जिसकी वजह से इसका जो टोटल बजट है दैट कम्स टू 3,400 crore for this period 2021 to 2025. Okay, so what are the additional revised? अब additional क्या क्या चीजें इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या इंक्रीज किया है? सो हैफियर रियरिंग सेंटर। हैफियर क्या है सबसे पहले मुझे ये बताइए। हैफियर आर द फीमेल काउ, किसको बोलते हैं? फीमेल काउ विच वॉज नॉट रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मींस शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टिल नाउ। ठीक है, मेच्योरिटी नहीं आई है। सो हैफियर इज अ फीमेल काउ। ये आपके नाबार्ड के फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज अ स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना आपसे कि हैफियर क्या है, बुल क्या है। ओके, सो रैम क्या है? सो दे कैन आस्क यू दिस एज वेल, हैफियर, बिकॉज अभी न्यूज में है एंड रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हैफियर क्या है? इट्स अ फीमेल काउ लेस देन 2 years of एज हु हैज नॉट matured or not able to give birth till now. Okay, so Heifer rearing center, they will provide, if someone was to establish Heifer rearing center means कि उनको वहाँ पे grow किया जाएगा। They want to give emphasis on the production of female cow, कि अगर कोई cow birth दे रही है तो वो female cow को birth दे। Okay, so if anyone want to establish this Heifer rearing center, they will provide one time assistance of 35% of the capital cost, कि कितना उसका cost लगेगा उसका 35% हम देंगे। एंड दे वांट टू सेट अप टू 30 हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर 15,000 हैफियर्स। ठीक है, इतना उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, दे वांट टू सपोर्ट द हाई जेनेटिक मेरिट हैफियर। ऐसी हैफियर जो जेनेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच हैव द जीन्स ऑफ वेरी हाई मिल्क प्रोडक्शन, वेरी हाई मीट प्रोडक्शन, दे विल बी गिवन एम्फेसिस, उनको और ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। फॉर दैट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, इतने 3% इंटरेस्ट सबवेंशन पर लोन दिया जाएगा फार्मर्स को फॉर द परचेज ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट हैफियर। कि अगर कोई डेयरी फार्मर है, ही वांट टू परचेज अ गुड जेनेटिक मेरिट हैफियर, वो एक खरीदना चाहता है, तो उसको 3% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा कि आप खरीद सकते हैं। ओके, व्हाट डज एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे इसके? तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे कि फार्मर की इनकम जो है, इफ
8.5 करोड़ फार्मर जो डेयरी सेक्टर में एंगेज है उनकी इनकम इंक्रीज होगी एंड इट विल कंजर्व द इंडिजीनस बोवाइन ब्रीड। ये जो इंडिजीनस कैटल ब्रीड्स है या बोवाइन ब्रीड्स है उनको कंजर्व करेगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बजट में क्या क्या प्रोविजंस थे, ठीक है, वो देखते हैं। So we will look upon this fastly. First, under the budget, the scheme was launched by the Prime Minister, that is your Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. इस स्कीम के अंडर क्या था? They want to target 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है उन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन देयर। ओके, दे वांट टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, मींस दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप। सिर्फ एक व्हीट, राइस या मस्टर्ड पे, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप पे ध्यान नहीं देना है, दे वांट टू ग्रो मच क्रॉप्स इन दैट रीजन एज वेल। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, अगर उन रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो उसको इंक्रीज करना है, और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेजेस को भी इंप्रूव करना है। मींस होलिस्टिक अप्रोच है कि हम कंप्लीटली उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जिनमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी है उनको अपलिफ्ट करेंगे। देखो, प्रोडक्टिविटी लो है किसी रीजन की, फार्मर को गुड हार्वेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके पास हार्वेस्ट अच्छा नहीं है, प्रोड्यूस अच्छा नहीं है, एंड ही इज गोइंग टू सेल दैट इन अ मार्केट, देन ही इज नॉट गेटिंग मच मनी। ठीक है, उसको पैसा उतना मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी प्रोड्यूस की क्वालिटी क्वांटिटी है ही नहीं उतनी। सो दैट्स व्हाई दिस एंड ऑल ऑफ दिस will create a less socio-economic development in these regions. अब पैसा ही नहीं है तो फार्मर स्पेंड कैसे करेगा? ही विल स्टक इन डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, है ना। तो लो प्रोडक्शन होगा, वो एजुकेशन पे इतना नहीं खर्च कर सकते, हेल्थ पे इतना नहीं कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कंप्लीट अप्रोच है कि इफ वी विल implement this scheme, it will increase or it will uplift the whole area in other terms as well, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फार्मर के पास अच्छी मनी होगी स्पेंड करने के लिए, एंड ही विल स्पेंड इन अदर सेक्टर्स एज वेल। वो हेल्थ पे भी खर्च करेगा, अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी खर्च करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, मशीनरी प्रोक्योर करेगा। तो दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड अपलिफ्ट द रूरल सेक्टर देयर एज वेल। ओके, सो 100 कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करेंगे? 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इट विल बेनिफिट अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा। और ये इसी साल बजट की स्कीम्स है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम द रूरल पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड हैं या फिर कोई काम नहीं है, ट्रेनिंग्स में लैक कर रहे हैं, स्किल्स में लैक कर रहे हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड दे विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ एग्रीकल्चर। तो दिस इज एन मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको टारगेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड दे वांट फोकस ऑन स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस रूरल यूथ। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, STRY, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ऑफ यूथ, दैट इज अंडर दिस। दे वांट टू प्रमोट दैट स्कीम कि हम रूरल यूथ को ट्रेन करेंगे डिफरेंट स्किल्स में, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ताकि वो एम्प्लॉयड हो जाए और गुड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर सके। सो इन द फेज 1 दे वांट टू कवर 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स। ये फेज 1 में 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अगेन पल्सेस में हम लैग कर रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग दैट मच प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस जितना हमारी कंट्री में होना चाहिए टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन दिस पल्स प्रोडक्शन। तो जिसके लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया गया है बजट 2025 में। ये 6 ईयर मिशन है विद द फोकस ऑन, इट्स एन 6 ईयर मिशन विच फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर में फोकस होगा, ठीक है। एंड दे वांट टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई प्रोटीन वेराइटीज ऑफ पल्सेस, ठीक है, कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड हो, क्लाइमेट का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और उनमें प्रोटीन जो है ज्यादा हो। अब
ये सब तो कर दिया, अब प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी अच्छे से तो who will buy, why will farmer grow these crop? So they had given assurance to the farmer that for the 4 year we will procure the tur, urad and masoor at the MSP by NAFED and NCCF. ठीक है. Next, they want comprehensive program. They have launched the comprehensive program for vegetable and fruit production के लिए आपका ये scheme launch किया है. Under this, they want to promote the vegetable and fruit production को increase करना है. Increase तो already है. They want to improve the supply chain. Supply chain को improve करना है. They want to focus on value addition. Value addition means processing पे focus करना है. Like tomato is there, तो टोमेटो केचप बना लो, टोमेटो सॉस बना लो, टोमेटो प्यूरी बना लो, टोमेटो को कैन कर लो. सो डू द वैल्यू एडिशन सो दैट post harvest loss can be reduced. Processing, ensuring better market prices, and this will be implemented with the partnership with states and farmer producer organization. Next, national mission on high yielding seeds. Again, they want to produce, they want to जनरेट हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. इनका प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहते हैं, जिसके लिए रिसर्च सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, है ना, जो ICR के अंडर है, डिफरेंट सीड एजेंसीज है. तो दे वांट टू स्ट्रेंथन द रिसर्च सेक्टर इन हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज. ओके, एंड फॉर कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी, इसके लिए दे वांट द कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ 100 सीड्स वेराइटीज रिलीज सिंस जुलाई 2024. इस प्रोग्राम के अंदर जुलाई 2024 के बाद से 100 नई सीड वेराइटीज रिलीज की जा चुकी है. नाउ कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन. हमारी कंट्री में कभी कोई एक टाइम था कि जब कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, एंड विच इज़ एसेंशियल फॉर आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल. अब ये प्रोडक्शन जो है कम हो गया है. सो एंड देर आर फ्यू पेस्ट एज वेल, पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक पिंक कॉटन बॉलवॉर्म. सो 5 ईयर का मिशन है, कॉटन यील्ड एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है. एंड दे आर फोकसिंग, ये मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, दे वांट टू प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन. ठीक है, एंड दिस इज अलाइनमेंट विद जो टेक्सटाइल का 5F विजन प्रोग्राम है, दे विल फोकस ऑन दैट. किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट एनहेंसमेंट. जो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो हम लोन ले सकते थे, अर्लियर दैट लिमिट वाज 3 लाख, नाउ इट इज इंक्रीज टू 5 लाख, ही इंक्रीज कर दिया है. एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स को ही बेनिफिट करेंगी. दिस स्कीम, दिस वाज अगेन डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि यूरिया प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन आसाम, नापरूप नाम आसाम के अंदर ये इसको एस्टेब्लिश किया है, विच इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 12.7 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन. ओके, दिस स्कीम, दिस प्लांट वॉज why this plant was there established there to increase the for self sufficiency in urea production. ठीक है. नेक्स्ट, मखाना बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार. सबसे ज्यादा मखाना का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बिहार में होता है. कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साइड? मुजफ्फरनगर साइड. सो दे वांट टू, दे हैड एस्टेब्लिश्ड द मखाना बोर्ड देयर सो दैट देयर विल बी अपलिफ्टमेंट ऑफ मखाना फार्मर्स एंड मखाना प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग को बढ़ावा मिले. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे हैव एस्टेब्लिश्ड दैट बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मखाना फार्मर इनटू FPOs, और मखाना फार्मर्स जो है उनको एंगेज किया जा सके FPOs और पैक के साथ, और उनका प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके. दैट इज, मखाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे आर योर फॉक्सनट और जनरली दे आर लोटस सीड. मखाना जो है वो क्या होते हैं? कमल के बीज होते हैं. ठीक है. फिर जैसे आपका पॉपकॉर्न बनता है ना मेद से, वैसे ही मखाना बनाया जाता है. नेक्स्ट, डेयरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं? सो फिशरीज एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए स्पेशल फोकस, बिकॉज नाबार्ड, सॉरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप हैव मोर पोटेंशियल फॉर फिशरी सेक्टर, और वहां पर फिशरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं है. सो दे वांट टू फोकस ऑन दीज सेक्टर्स. सस्टेनेबल हार्नेशिंग of fisheries from exclusive economic zones and high seas. जो exclusive economic zone है और high seas जो है, जो up to 200 किलोमीटर area from the national boundary जो है, that comes under this. तो वहाँ से sustainable production of fisheries किया जाएगा, and this was expected to boost
marine sector production and export as well. Now credit and financial inclusion. Credit एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो दे हैव लॉन्च द स्कीम ऑफ ग्रामीण क्रेडिट कार्ड अंडर दिस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर एसएचजीज. जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे हैव टू डेवलप अ फ्रेमवर्क टू गिव लोन एंड क्रेडिट टू द एसएचजी मेंबर्स एंड रूरल पीपल. नेक्स्ट, they want to improve the credit and expand the credit to micro enterprises. जो छोटे छोटे enterprises हैं या processing unit है रूरल एरियाज में, उनका प्रोडक्शन उन तक क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाना है. and they have increased the credit card limit with a 5 lakh limit to for micro enterprises. ठीक है, and 10 lakh card will be issued in first year. कितना दे सकते हैं एक के साथ? आपका एक पर्सन को 5 लाख तक दे सकते हैं लोन. एंड कितने कार्ड्स इशू किए जाएंगे? 10 लाख कार्ड्स इशू किए जाएंगे फर्स्ट ईयर में आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम. नाउ रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब क्रॉप्स तो ग्रो कर दी, प्रिजर्व भी तो करो, बिकॉज लैंड रेसेस जो है हमारी पहले की वेराइटीज जो है वो खत्म होती जा रही है. यू हैव टू प्रिजर्व द जीन एज वेल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. तो दे हैव एस्टेब्लिश द जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्मप्लाज. तो एक सेकेंड gene bank with 10 lakh germplasm line for the food security means they will create a gene bank जिसके अंदर 10 लाख germplasm को, मतलब जो 10 लाख वेराइटीज जो है क्रॉप्स की, उनको स्टोर करके रखा जाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना हो. नेक्स्ट, रिसर्च और डेवलपमेंट को भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रमोट किया जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है ना बहुत कम इंडल्ज है इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा. एंड अंडर दिस research and development will be promoted in your agriculture, fishery, livestock, animal husbandry and every branch of your agriculture to strengthen this. Okay, so this is all about for today's lecture. We have discussed most important current affair of your agriculture for the past 10 days. ठीक है, मार्च के complete हो गए in 3 series. So thank you so much and have a nice day. If you haven't watched the previous lecture, you must go and watch that.